ایک سچی خوفناک اب بیتی۔ یہ میرے ساتھ پیش آنے والا ایک سچی واقعہ ہے۔ میرا نام علی رضا ہے۔ یہ بات کوئی 2017 کی ہے، جب میری ڈیوٹی گالوے کے قریب تھی اور میں نے گالوے میں ایک بہت اچھا گھر خریدا تھا اپنے رہنے کے لیے۔ میں اس جگہ سے انجان تھا، اسی لیے بنا چھان بین کے دوست سے وہ گھر لے لیا۔ میرا گھر ذرا تھوڑا سائڈ پہ تھا اور گھر کے ساتھ گول کافی کھلی تھی۔ ابھی مجھے ادھر شفٹ ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد نہ جانے کیوں مجھے ایک دن چائے بناتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کے اگنور کر دیا کہ اس گھر میں تو میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تو چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ شاید وہ بلی ہے جو چل رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے دل کو دلاسا دیا اور دوبارہ سے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد یہ واقعات میرے ساتھ تقریباً مسلسل ہونے لگ گئے۔ پہلے تو یہ صرف چھت کی حد تک تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گیا ہے، اور مجھے ان کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دیتی تھی، پر مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں دوبارہ سے چائے بنا رہا تھا کہ میری کچن کے سائڈ پر ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ چائے بناتے ہوئے میری ایک دم سے نظر اس شیشے پر پڑی تو مجھے اس شیشے کے اندر کسی کا سایہ نظر آیا۔ مجھے صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے سایہ نظر آیا اور پلک جھپکتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس دن کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنا ہم سمجھایا۔ میں نے یہ سمجھا کہ مجھے تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے کام سے، اسی لیے شاید مجھے ایسا محسوس ہوا ہوگا، کیونکہ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ میں آفس میں دیر تک بیٹھا کام کرتا رہتا تھا اور گھر میں کم ہی آتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کام سے آفس میں ہی روکنا پڑا، تو جب میں اگلے دن صبح گھر واپس آیا تو میری ہمسائی نے مجھے دروازے پر ہی روک کر کہا کہ بیٹا تم کدھر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں آفس سے آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا بیٹا تم رات کو اس گھر میں ہی تھے؟ میں نے کہا نہیں آنٹی، نے تو آفس میں ہی رات سو گیا تھا کیونکہ کام زیادہ تھا۔ آنٹی نے کہا کل رات تمہارے ڈائننگ روم کی لائٹ بار بار چل رہی تھی اور خود ہی پوچھ رہی تھی، اور تمہارے کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی اور پھر خود ہی بج جاتی تھی۔ مجھے لگا شاید تم آ گئے ہو۔ یہ بات ان کے لیے ایک سرسری تھی، لیکن یہ بات میرے لیے بہت خوف کا باعث بن گئی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو میرے گھر میں سایہ ہے، کیونکہ مجھے جو آوازیں سنائی دیتی ہے قدموں کی وہ میرا وہم نہیں، وہ ایک یقینی چیز ہے۔ خیر، میں نے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور وہ گاڑی اپنے دوست کے گھر کی طرف گھمائی اور وہاں چلا گیا۔ دوست کے پاس جا کر میں نے اسے گھر کے بارے میں بتایا کہ میرے گھر میں سایہ ہے، تم نے مجھے اس بارے میں پہلے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ سب تمہارا وہم ہے، میں بھی تو اسی گھر میں رہتا رہا ہوں اتنا عرصہ، میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تم گھر جا کے آرام سے سو جاؤ، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ سپارکنگ کی وجہ سے تمہارے گھر میں لائٹ چل رہی ہوں اور بھی رہی ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا گا۔ میں نے اس کے بعد سنی تو میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہو، اور میں گھر آ گیا اور میں اندر جا کر سو گیا، کیونکہ میں تھکا ہوا تھا۔ اندر جا کر میں جلد ہی سو گیا۔ جب میں بہت گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے کسی کے ہاتھوں کو اپنے پاؤں پر محسوس کیا، کہ پھر ان ہاتھوں کی شدت نے مجھے زور سے بیڈ سے نیچے کی جانب نیچے گرا دیا، اور میں نے جب آنکھیں کھولیں تو 1 سیکنڈ کے لیے میرے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل والا انسان تھا، جسے میں صحیح سے دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کالے رنگ کے گہرے بالوں سے۔ وہ آدمی میرے سامنے صرف 2 سے 3 سیکنڈ رہا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں بہت بری طرح ڈر گیا تھا، وہ سری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے میری وہاں سے جلد ہی تبدیل کہی
और हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं ये परसरर घर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मैंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन मैं जहां जहां भी गया वो साया मेरे साथ ही चला जाता रहा। नोट: मेरी कहानी बहुत ही ज्यादा लंबी है, मुझे उर्दू में लिखना नहीं आता, इसीलिए मैं ग्रुप के एडमिन को अपनी कहानी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा ताकि वो लिख सकें और आपको मेरे साथ होने वाला मुजरा बता सकें। ये मेरे साथ होने वाला सच्चा वाकया है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मेरे लिए वो घर छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन बात ये थी कि अब ये बात भर गई थी, इसीलिए मैंने ये घर छोड़ दिया और कैसी फ्लैट को रेट पर के लिया और कैसी प्रॉपर्टी एक्ट को कहा कि वो ये मकान बेच दे। कुछ अरसे तक इस एजेंट ने वो मकान बेच दिया, पर अब मेरे अंदर इस घर के बारे में तजस्सुस और भी भिड़ गया था कि आया अब वो हैवान जिन्नात उन लोगों को भी तनक करते हो गए या नहीं। ये जानने के लिए मैंने अपने एक्ट से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, वो लोग वहां बहुत खुशी से रह रहे हैं, उनको वहां कोई तकलीफ कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, मैं भी अपने फ्लैट में रहने लग गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन वहां सीट हो रही थी। फिर एक दिन मेरी ऑफिस की बॉस किरण ने कहा कि अब हम तुम्हारा ये गालवे से बर्मिंघम कर रहे हैं। मैं अफसरा हो गया। मीडियम इसकी क्या जरूरत थी, मैं यहां पर एडजस्ट पा गया हूं। मैडम किरण, वहां बर्मिंघम के ऑफिस में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, 6 माह तक हम तुम्हें यहां दोबारा वापस बुला ले गए। मैंने कहा मुझे वहां जाने का क्या फायदा होगा। मैडम किरण मुस्कुराकर, वहां तुम्हारी कोई भी रात खाली नहीं जाएगी। मेरी जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी है कि मुझे ये प्यार मोहब्बत ये इश्क से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ही फायदे उठाया। मेरे नजदीक औरत और मर्द का रिश्ता एक बेड से शुरू होकर एक बेड तक ही खत्म हो जाता है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कभी भी कैसी एक औरत का हैकर नहीं रह सकता। मुझे कैसी से कभी भी मोहब्बत नहीं हुई, पर लोगों को होती रहती है। नोट: में पूरब का रहने वाला हूं और कहते हैं ना जैसा देश हो वैसा भेस करना पड़ता है, और एक अकेला मर्द घर वालों से दूर वैसे भी आजार होता है, क्योंकि इसे रोकने वाला और समझाने वाला कोई नहीं होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिन के बाद मैं गालवे से बर्मिंघम चला गया। वहां ऑफिस का काम इतना नहीं था, पर वहां काम के बद इंतजामी थी, यानी काम के मतलब कोई दुरुस्त रहनुमाई नहीं थी। वर्ष को हर काम बेतरतीब था। ये सब देखकर मुझे पता चल गया कि मुझे किरण ने यहाँ क्यों भेजा है। और वहां का स्टाफ भी बहुत कम था, कोई 20 या 22 लोगों पर मुश्तमिल था। मैंने अपने तौर पर ऑफिस में जो तब्दील लानी थी मैं वो ले आया, और साथ ही एक फ्लैट भी रेंट पर ले लिया रहने के लिए, जिसमें 2 कमरे, एक किचन और वॉशरूम था। ये फ्लैट मुझे जैसे अकेले मर्द के लिए काफी था। मुझे अभी फ्लैट में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे। मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक यहूदी फैमिली रहती थी। उनकी एक औरत जिसका नाम ओल्सन था, वो मुझे बहुत ही गर्मजोशी से मिली। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक तमीजदार और खूबसूरत औरत थी। पहले दिन जब मैं अपनी फ्लैट में शिफ्ट हुआ था तो खाना उनकी तरफ से ही आया था। मैं वैसे भी ऑफिस से घर कैसी फिक्स वक्त पर नहीं आता था, पर मैं जब भी आता था उनको मेरे आने का पता चल जाता था, क्योंकि मेरे दरवाजा खोलने की आवाज उन तक चली जाती थी। अब उनकी ये आदत हो गई थी कि मैं जब भी घर आता तो वो साथ ही मुझे कहती, अली तुम खाना ना बनाना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया हुआ है। सच कहूं तो वो बहुत ही अच्छी हमसाई थी मेरी। मुझे वहां रहते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन कोई रात के 9 और 10 बजे का वक्त था। मैं इस वक्त टीवी देख रहा था। इस वक्त सर्दी बहुत थी क्योंकि दिन में बारिश हुई थी। अब मैं फुल टीवी देखने में मगन था कि किसी ने एकदम से कमरे का दरवाजा खोला और फिर ऐसे बंद कर दिया। मैं चौंक कर उठा और कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा और कमरे की लाइट दोनों बंद थी और कमरे में कोई नहीं था।
पर यह दरवाजा खोलकर जोर से बंद हुआ था, यह वहम नहीं था मेरा। खैर, मैं दोबारा से आकर टीवी देखने लग गया। अब इस रात और कुछ खास नहीं हुआ था। अब इससे कोई 2-3 दिन बाद की बात है कि मैं ऑफिस का कोई काम कर रहा था कि मेरा मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर के बाद वहां से कैसे गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे मोबाइल का पता तब चला जब मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आई और मोबाइल की ट्यून बजी। मैंने उधर उधर देखा तो वहां मोबाइल नहीं था। मैं उठा और दूसरे कमरे में गया तो देखा कि मोबाइल वहां टेबल पर पड़ा हुआ है। मुझे इस वक्त अच्छी तरह याद था कि मैंने मोबाइल इस वक्त अपने पास ही रखा था, पर यह दूसरे कमरे में कैसे उगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मोबाइल पर कॉल मेरी बॉस किरण की थी तो इसीलिए मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। अब ये हरकतें रोज होने लगी। कभी घर का हीटर खुद ब खुद ही उनको जाता और फिर खुद ही बंद हो जाता, कभी घर की घंटी खुद ही बजती और फिर खुद ही बंद हो जाती, और मैं जो चीज जहां रखता वो मुझे वहां से नहीं मिलती थी। ये सब चीजों ने मुझे परेशान कर दिया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये कुछ और है। ये वही काले बालों इंसान है जो मेरे पीछे यहां तक आ गया है। एक दिन में ऑफिस से लेट नाइट घर आलिफ मैंने अभी दरवाजा ही खोला था कि ओल्सन बाहर आई और मुझे कहा कि तुम अब कहां से आ रहे हो। मैंने कहा कि मैं अब ऑफिस से आ रहा हूं। क्यों? तो वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कहा, बड़ी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए थे, अब फिर। मैंने हंस कर कहा, क्या हो गया है आपको? मैं तो अभी हो आया हूं। ओल्सन ने कहा, अली मैं कसम खाती हूं तुम कुछ देर पहले आए थे। जब तुमने दरवाजा खोला तो मैं फौरी अंदर से तुम्हारे लिए खीर लेकर आई थी। मैंने तुम्हें हेलो हाय किया पर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। तुमने बस दरवाजा खोला और सीधा अंदर चले गए थे तुम। मैंने कहा, ओल्सन मैं अभी आ रहा हूं, अब ये क्या बात कर रही है? ओल्सन ने हैरानी से कहा, फिर वो कौन था जो तुमसे पहले फ्लैट के अंदर गया था? अभी हमारी इतनी सी ही बात हुई थी कि फ्लैट का दरवाजा जो कि मैं थोड़ा सा खोल चुका था, एकदम से अंदर से आवाज आई जैसे किसी ने अंदर कोई बर्तन उठाकर दीवार पर मारा हो। फिर इसके बाद बहुत सारे बर्तनों कर गर्मी की आवाजें आई। ओल्सन मेरा बाजू पकड़कर बोली, अंदर मत जाओ, अंदर कोई और ही है। पर तब तक मैं अंदर दाखिल हो चुका था। ओल्सन बाहर खड़ी देख रही थी। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच्ची अब बीती आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा, और कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई कहानी पोस्ट करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें।